ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ। ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਨੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੀ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜੀ। ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ। ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀ। ਖਿਲਾਫ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਲੂੰਦਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੀਪ जी। देखिए वीर जी, सबसे बड़ी बात है जो ये कलाकार होते हैं। जी कुछ कलाकार जैसे अपने पंजाब के कलाकार थे, बब्बू मान, दलजीत दोसांझ। ये कलाकार थे जो तन मन और धन से इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए। एक तो ये होता है कलाकार, सही मायने में कलाकार। कलाकार वो होता है जो मतलब लोगों की भावनाओं को अपनी कला के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, उसको बोलते हैं कलाकार। कुछ होते हैं कंगना रनौत जैसे, जिनको हम कलंकार बोलते हैं। कलाकार नहीं है वो, कलंक है वो, कलंकार है वो ऐसे कलंकार है। उन्होंने जितना मतलब कि एक औरत होते हुए, सबसे बड़ी बात है कि वो एक औरत है, ना तो उसने अपनी औरत वाली मर्यादा रखी, ना उसने ये मर्यादा रखी कि ये किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। और किसान नेताओं ने भी बोला था, शायद इसको इसीलिए पद्मश्री दिया गया है, ये किसानों को गालियां देती है। जिन किसानों को अन्नदाता बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, एक तरह से पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, उन किसानों के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने ट्विटर के ऊपर कि हम तो बोलते हुए भी हमारे को शर्म आ रही है। और वो एक औरत होते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। ये कलाकार नहीं, ये कलंकार हैं। ऐसे ऐसे कलंकार बहुत सामने आए हमारे। ऐसे भी सामने आए जिन पर हम इतना भरोसा करते थे कि ये हमारे किसानों के पूत हैं, ये हमारे साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन वो खड़े नहीं मिले। जैसे अपने पंजाब वाले कुछ साथी गए थे, धर्मेंद्र की कोठी पर भी गए थे, तो वो छुप गए थे। तो ऐसे ऐसे भी मिले जिनको पंजाब ने दिल से, आप एक चीज हमेशा आजमाना वीर जी, पंजाबी जो होता है ना, दोस्ती करो या दुश्मनी करो, दिल से निभाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें। इन्होंने धर्मेंद्र को एक छोटे से गांव सान्यवाल से उठा के पूरी दुनिया में इतना मशहूर कर दिया। सिर्फ वो मैं पंजाबी पंजाबी करके मशहूर हुआ था, और पंजाब वालों ने दिल जान से उनको प्यार किया और इतना मशहूर कर दिया। वो धर्मेंद्र कभी एक शब्द नहीं बोल पाया किसानों के लिए। बड़े सोचने वाली बात है। पूरा पंजाब जो आंदोलन में लगा हुआ था, उनके लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे हरियाणा के कलाकार भी बहुत हैं। जब किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और वो जाके बीजेपी की गोद में बैठे थे, हमने उनकी भी पहचान की हुई है। इन सब की पहचान है, इन सब का बायोकाट किया जाएगा। कलाकार होते हैं बब्बू मान जैसे, दलजीत दोसांझ जैसे, जो तन मन धन से इस आंदोलन में लगे हुए थे। आप इनको कलाकार नहीं कह सकते। कंगना रनौत को कलाकार नहीं है, वो एक कलंकार है। उनका तो पैदा होना भी बिल्कुल ये अपराध है एक तरह से इस दुनिया में। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ जी। ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆ ਕਲੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਕੇਐਮ जी ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਜਰਾ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ जी ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ जी ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ जी ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਬਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ सारा घटनाक्रम अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ ਦੀਪਕ जी। देखिए वीर जी, एक तो जो ये अफवाहें उड़ाई गई थी, ये अफवाहें उड़ाई गई थी बीजेपी की तरफ से कि पंजाब वाले जत्थेबंदियां उठ के जा रही है, पंजाब वाले साथ नहीं देना चाह रहे, हरियाणा आंदोलन करना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो उन अफवाहों को विराम देते हुए हम बता देते हैं, पंजाब वालों ने बोला है जब तक हम अपनी पूरी लड़ाई नहीं जीत जाते, हमारी लाशें वापस जा सकती, हम पंजाब नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इसी मैटर को क्लोज कर देते हैं कि जो बोल रहे थे 32 जत्थेबंदियां उठ के जाएंगी, हाँ एक दो जो बंदा, देखो सरकार है, इतना बड़ा आंदोलन है, देश दुनिया देख रही इस आंदोलन को, इसमें सरकार ने अपने भी बंदे फिट किए हुए थे। जैसे मंजीत सिंह सिरसा जो है, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी बीजेपी ज्वाइन की है। अरे बीजेपी ज्वाइन तो तब की ना जब उसने बीजेपी छोड़ी होगी, वो तो पहले से बीजेपी के थे। ठीक है भाई, आंदोलन में चलो लगे हुए थे। और जो खालिस्तान का जिक्र आता था बार बार, वो खालिस्तान का जिक्र भी यही मनजिंदर सिंह सिरसा उठाते थे बार बार, जो कि अब सबके सामने स्पष्ट हो चुका है कि वो बीजेपी का बंदा था। ये स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज, अभी जो 4 तारीख की अपनी मीटिंग है, उस मीटिंग में सबसे अहम फैसले जो लिए जाएंगे, सबसे पहले तो सरकारें भी बोल रही है कि हम केस वापस ले लेंगे, पंजाब वाली सरकार भी बोलती है, हरियाणा वाली सरकार ने भी बोल दिया है। लेकिन उनसे जरूरी जो केस दिल्ली में हो रखे हैं, दिल्ली में बहुत से बंदों पर, अपने पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथियों पर केस दर्ज हैं हजारीगंज अदालत के अंदर, वहां पर अपने बंदे जेलों में भी बंद हैं। 150 से ज्यादा ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा के दिल्ली उसमें थाना परिसर में खड़े हुए हैं, उनको भी छुड़वाना है। अब बंदा बार बार तो दिल्ली चक्कर नहीं काट सकता। जो अपने स्टेट में केस हैं, उनसे जरूरी केस हैं, जो दिल्ली में केस है ना, उनको रद्द करवाना और कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाना। उसकी वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद आते हैं एमएसपी गारंटी कानून के लिए। सरकार ने भी बोला है कि हम, आप अपनी एक कमेटी बनाइए, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है, वो बातचीत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कल सबसे पहले जो डिसीजन लिया जाएगा ना, वो लिया जाएगा दिल्ली के केसों का। दिल्ली में जो केस है सबसे पहले वो रद्द करवाए जाएंगे। हाँ, जो अपने स्टेट के केस हैं, आंदोलन यानी यही समाप्त हो जाएगा। आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, ये सबको पता है। लेकिन हम आंदोलन का एक तरीका बदली किया जाएगा, तरीके को बदली किया जाएगा, ये नहीं कि आंदोलन को खत्म किया जाएगा। अभी तरीका भी बदली होना चाहिए। सभी मौसम हमने निकाल दिए, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम को निकाले हमने दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए। अभी उस तरीके को इसलिए चेंज करना चाहते हैं। अभी सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है दिल्ली में, सबको पता है। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए 1 साल से, कितने बुजुर्गों की वहां पर जीवन लीला समाप्त होगी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे बैठे। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आंदोलन की दिशा और दशा को थोड़ा बदली किया जाएगा। ये नहीं कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। जो साथी ये बोल रहे थे कि वे आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा आंदोलन। अभी हमारी मांगे बहुत हैं, उन मांगों को भी मनवाया जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा तरीका बदली किया जाएगा। ये नहीं कि उसको आंदोलन को खत्म किया जाएगा। हाँ, बहुत साथियों का हमने भी कमेंट देखे हैं कि पंजाब वाले जा रहे, कोई पंजाब वाला नहीं जा रहा, कोई हरियाणा वाला नहीं जा रहा, कोई यूपी महाराष्ट्र का नहीं जा रहा, जाएगा कोई नहीं। आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन आंदोलन का दिशा और दशा को थोड़ा चेंज किया जाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਜੋ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ। देखो वीर जी, जो ये प्रोपगंडा था, ये बीजेपी ने फैलाया था कि पंजाब की 32 जत्थेबंदियां, वो 32 जत्थेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा में है और एक साथ हैं। 32 जत्थेबंदियां वो भी हैं, साथ में जोगेंद्र सिंह उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा एकता, वो भी साथ में है। यूपी की जत्थेबंदियां भी साथ है, हरियाणा की जत्थेबंदियां भी साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा ना तो 2 फाड़ हुआ है, ना ही 4 फाड़ हुआ है। ये बीजेपी है जो बार बार इसको 2 फाड़ 4 फाड़ करती रहती है। लेकिन बीजेपी का ये आखिरी शस्त्र था जो उन्होंने चला के देख लिया। अपने पंजाब के कुछ नेता उन्होंने जो प्लांट किए थे, वो उनके चेहरे सबके सामने आ गए। 32 जो जत्थेबंदियां हैं,
उन्होंने क्लियर और स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लाश वापस जा सकती है, हम वापस नहीं जाएंगे जब तक आंदोलन पूरा नहीं जीत जाते हैं। ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में आया हुआ है। पंजाब के कुछ साथी भी कमेंट करते हैं कि 32 जत्थेबंदियों ने बोल दिया हम वापस जाएंगे, कोई वापस नहीं जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक है और एक रहेगा। ये नहीं कि अभी इसी आंदोलन के लिए, आगे और भी कोई आंदोलन होगा तो यह संयुक्त किसान मोर्चा आपको एक ही जगह पे मिलेगा। और इसकी जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के आपको नाम भी बता दिए जाएंगे बाद में। वो जो कमेटी बनेगी, वो कमेटी आगे कोई भी मुद्दा होता है, देखो एक हमारे देश में जब बीजेपी विपक्ष में होती है ना, फिर जी आज एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, बीजेपी अगर विपक्ष में होती, आज जो महंगाई है, आप सिलेंडर के दाम देखो या किसी भी चीज के पेट्रोल डीजल के दाम देखो, अगर 1 रुपया भी बढ़ जाता था ना पेट्रोल डीजल का या सिलेंडर का, तो जो बीजेपी विपक्ष में होती थी ये जीना मुश्किल कर देती थी। पक्ष में जो कांग्रेस सरकार थी उसका जीना मुश्किल कर देती थी। आज पता नहीं क्यों विपक्ष इतना खामोश है कि सरकार जो है अपनी मनमानी करती जा रही है। उस मनमानी को रोकने के लिए आगे तक के लिए संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया है, जो किसी के पक्ष में नहीं होगा, जो सिर्फ जनता के पक्ष में होगा। जनता के जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों को उठाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा रहेगा। कहीं संयुक्त किसान मोर्चा दो फाड़ नहीं हुआ है। ਦੀਪਕ ਜੀ ਅਸਲ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਿਆਈ ਹੋਊਗੀ ना। देखिए वीर जी, सियासत का काम होता है तोड़ना और हमारा काम होता है एक दूसरे से जुड़कर रहना और लोगों को जोड़ना। सियासतों को पहली बार इस सियासत को जो बीजेपी की सरकार, इसको झुकाने वाला कोई नहीं था, ना कांग्रेस थी ना कोई दूसरी सरकार थी। इनको अगर किसी ने झुकाया है तो वो इस आंदोलन ने झुकाया है, वो किसानों ने झुकाया है, वो इनकी एकता ने झुकाया है। जो एकता हम बार बार कहते रहते हैं, मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर बोलता रहता हूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की, जो संयुक्त पंजाब की जो एकता हुई है ना, वो एकता, उस एकता ने सरकार को झुका के दिखा दे। सरकार को इतना वो हो चुका है कि पहली बार लोगों, गोदी मीडिया ने इतने फायदे गिनाए थे कानूनों के कि कानूनों से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खूब फायदे गिनाए थे। अब गोदी मीडिया की भी समझ में ये नहीं आया कि कानून रद्द हो गए तो अब तुम इनके नुकसान कैसे गिनाओगे। गोदी मीडिया को एक ऐसा मुंह पे तमाचा लग गया था जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने बोला था ना तीनों कानून रद्द, तो गोदी मीडिया की समझ में नहीं आया। अभी वो लोग एमएसपी के नुकसान गिनवा रहे हैं। एमएसपी भी लेकर रहेंगे, ये नहीं कि एमएसपी नहीं, एमएसपी सबसे जरूरी है, हमारे किसान के लिए सबसे जरूरी है एमएसपी। ये है पूरे देश की जनता के लिए, सभी स्टेटों के लिए। अब इस चीज को आपको एक देखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अगर लोग बैठे थे तो वो हरियाणा और पंजाब वाले बैठे थे बॉर्डर के ऊपर। 1 साल हो गया, आए हैं दूसरी स्टेटों के लोग भी आए हैं, बंगाल से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, सभी जगह से लोग आए, लेकिन जो संख्या बल हरियाणा और पंजाब ने दिखाया दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, वो दूसरी स्टेटें नहीं दिखा पाई थी। हम एक चीज चाह रहे हैं कि अभी दूसरी स्टेटों को भी चाहिए आगे आए और अगवा बने, अगवाई करे, अपनी नफरी को लेके आए। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के लगभग है वीर जी, और अगर आप देखो ये तो 2200 आदमी नहीं है बॉर्डर के ऊपर उत्तर प्रदेश के, क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए? ये चीज बोलने में ये लगता है कि हम यूपी हरियाणा पंजाब कर रहे, हम नहीं कर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा केस हरियाणा और पंजाब में, सबसे ज्यादा बंदे बैठे हरियाणा और पंजाब के, बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा और पंजाब में। तो इसका जो सरकार कर रही थी, सिर्फ 2 स्टेटें आंदोलन कर रही हैं। यूपी को भी चाहिए कि अपना संख्या बल दिखाए एक बार सभी बॉर्डरों के ऊपर कि हाँ हम यही हैं, हम सबके साथ है। चुनाव आता है, चुनाव लड़ेंगे, नेताओं का काम होता है चुनाव लड़ना, पूरी जनता तो चुनाव नहीं लड़ रही। वो जनता क्यों नहीं आ रही? क्या उत्तर प्रदेश को एमएसपी नहीं चाहिए, या उत्तर प्रदेश को सिर्फ नेता ही बनना है? अगर नेता बनना है तो फिर एक साइड में हो जाए। जब हरियाणा और पंजाब ये कर रहा है तो फिर उस पर सवाल किस लिए उठा रहे हैं? सबसे ज्यादा हमने देखा था सोशल मीडिया पर यूपी वाले कर रहे थे, पंजाब वाले उठ कर चले गए, पंजाब वाले उठ कर चले गए। भाई कौन चलेगा उठ के? वो 32 जत्थेबंदियां भी यही है, पूरा संयुक्त मोर्चा एक जगह पे है, और जो कल मीटिंग होगी उस मीटिंग में फैसला भी ले लिया जाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ जी ਮੰਗ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। जी बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री मोदी 2014 में हरियाणा में रिवाड़ी में आए थे, तब इन्होंने बोला था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसमें C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद होगी और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा।
2014 से 2021 की जगह 2022 आने वाला है। 8 साल हो गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कलम गुम हो गई या उनकी स्याही खत्म हो गई? एक बार बता दें, अगर उनकी स्याही खत्म है तो उनको नई कलम दे दी जाएगी। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद शुरू करो। और सबसे जरूरी, एमएसपी गारंटी कानून के साथ साथ खरीद कानून बनना चाहिए। खरीद कानून और एमएसपी गारंटी कानून, ये सबसे जरूरी है किसानों के लिए, और इसको लेकर के रहेंगे। जो ये बोलते थे ना कि ये नहीं होगा, अब सबको यकीन है कि हाँ, आप जिद पे आ रखें, एमएसपी गारंटी कानून और खरीद कानून बनवा कर ही रहेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ सकता? जी बिल्कुल, सूबा सरकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। ये जो सोच रहे हैं ना कि भाई ये दिल्ली ही बैठे रहेंगे और हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। आई आपको एक चीज शुरुआत में हमने बताई थी, दिशा और दशा थोड़ी ये चेंज होगी आंदोलन की। आंदोलन ऐसे ही चलेगा। अब जो सूबा सरकारें हैं जो आराम से बैठी हैं कि ये किसान आगू और किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, अब फर्क उन पे पड़ने वाला है। पंजाब में चुनाव है, अब पंजाब में फर्क डालना है तो पंजाब के अंदर भी आंदोलन को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। तेज इसलिए करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, जो हमारी मांगे मानेगा, जो हमारा सहयोग करेगा, जो किसानों का सहयोग करेगा, खुले दिल से सहयोग करेगा और लिखित में देगा कि हाँ, मैं इन मांगों को मानते हैं और हम लागू करेंगे, किसान उसके साथ खड़े हैं। ये बात शुरुआत में भी बोली गई थी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही किया जाएगा। जो किसान के साथ होगा सरकार उसकी बनेगी, ना कि उनकी सरकार बनेगी जो जुमले बोलते हैं। जुमले वालों को सबने पहचान लिया है। अभी कल एक बयान देखा था नरेंद्र मोदी का कि 2022 में 80 करोड़ रोजगार देंगे। पहले हर साल 1-2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, अभी 2022 में 80 करोड़। इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ बेरोजगारी कितनी है देश के अंदर। 80 करोड़ रोजगार 2022 में दे रहे हैं। तो उस बेरोजगारी भी, समस्याएं देश में और भी बहुत है, लेकिन जो आंदोलन, जिस मुद्दे पे आंदोलन चला था, उन मुद्दों को भी हासिल करना, उन मुद्दों को हासिल करने का अब समय आ गया है। जो पंजाब की जत्थेबंदियों ने बोला था ना, हम पंजाब जाएंगे, उन्होंने ये नहीं बोला था हम आंदोलन छोड़ के पंजाब जाएंगे। वो ये इशारा था कि पंजाब में अभी चुनाव है, अब जो भी सरकार बनेगी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। वो प्रेशर डालने के लिए बोला गया था, ना कि आंदोलन को छोड़ कर जाने के लिए बोला गया था। ये जो गलतफहमी होती है ना, छोटी सी गलतफहमी, और गोदी मीडिया उसको इतना फैला देती है कि पंजाब वाले उठकर जा रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कोई नहीं लड़ेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है, पहली बात तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ेगा उसको संयुक्त किसान मोर्चा से निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट और क्लियर है बिल्कुल। ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਮਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੈਂਚ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।